A very good morning. So, in last Sunday, I think your SST chapter number 10 was in as a syllabus for a Sunday test. Now, we discuss chapter number 11 as a revision. We are doing revision. We have already completed the whole syllabus in SST. Now, chapter number 11, that is chapter number 11, transport in modern times. We are discussing transport in modern times. So, give 2 examples of modern means of transport. Use your chat box and answer. Give 2 examples of modern means of transport. Acha, first is Aditi Suman. Right answer. Very good. Modern means of transport. I am asking 2 examples of modern means of transport. Acha, mostly are giving the same answer. Bus and car. Okay. Bike, train, aeroplane. Very good. Abhinav Patnaik. Okay, very good. Umang, Natik, Mayank, very good. Okay. Modern means of transport. We are living in a 21st century and we are using the modern means of transport. There are lots of means of transport in our India. Modern means of transport. Firstly, we are discussing the different types of transport. Means of transport are divided into 3 types. Okay, it is visible to all. It is visible to all. Okay. First one is roadways, waterways, and airways. These are the 3 means of transport: roadways, waterways, and airways. Okay? In previous classes, in class 4, 3, we are doing that there are 3 mode of transport, that is roadways, waterways, and airways. यही roadways and waterways that is land से related है. हम लोग जो है land पे चलने वाले जितने means of transport अगर हम लोग इसको define कर लेते हैं, पहले appropriate कर लेते हैं कि land में क्या क्या है, तो roadways आएंगे, फिर लैंड पर और क्या होगा, पाइपलाइन, और इसी पे हमारा रेलवेज भी होंगे. ओके, वाटरवेज में इनलैंड एंड ओवरसीज. एयरवेज में इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइन. इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइन. ओके, तो these are the different means of transport. और हम लोग कहीं ना कहीं ये सारे means of transport को यूज करते हैं.
चलो हम लोग जो है ये क्लास हमारा रिवीजन का चल रहा है, हम लोग सारे चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो हमको सबको पहले ये बताइए कि which is known as the lifeline of the country's economy, which is known as the lifeline of the country's economy. Raise your hand and you have to answer. Don't use the chat box. Raise your hand and then answer. Which is known as the lifelines of the country's economy? That is Akriti. Akriti, firstly raise your hand. Okay, raise. Akriti. Transport. Akriti? Ma'am, transport. Very good. Yes, ma'am. Very good. Yes, thank Ansh, unmute yourself. Yes, ma'am. Ansh, which is known as the lifelines of country's economy? Means of transport is known as the lifeline of country's economy. Very good. Ansh, can you tell me the first national highway? Who built the first national highway? NH1. NH1. And who built the NH1? Sir Suri. Right answer. That is Sher Suri. Abhinav Patnaik, unmute yourself. Yes, ma'am. Abhinav, are you Yes, from class 5F? Okay. Abhinav, tell me. Yes, ma'am. National NH1, the National Highway Road number 1, that's National Highway 1. उसको और हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? Alternative name of NH1. Ma'am, Grand Trunk Road. Very good. GT Road, Grand Trunk Road. And who built the Grand Trunk Road? Ma'am, Sher Suri. Sher Suri. Very good. Suryakant, unmute yourself. Yes, ma'am. सूर्यकांत, जो फर्स्ट नेशनल हाईवे है हमारा, वो कहां से कहां लिंक करता है? मैम, दिल्ली मैम, इट कनेक्टेड कहां से कहां तक? मैम, दिल्ली से मैम डोभी नहीं, हमारे यहाँ NH33 है। मैम, Anushka, unmute yourself. Yes, ma'am. Anushka, can you tell me Grand Trunk Road connected from वीडियो? मोबाइल ठीक से रखो बेटा पहले अपना, बताओ। Yes, ma'am. ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां कनेक्ट होती है? मैम, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बांग्लादेश, पेशवार इन पाकिस्तान। पेशवार इन पाकिस्तान, दैट इज करेक्ट, बट कहां से? Ansh, can you tell me? Ma'am, Sonagiri in Bangladesh to Peshawar in Pakistan. Okay. अच्छा, सोनार गांव इन बांग्लादेश टू पेशावर इन पाकिस्तान, ये जो है कहां से कनेक्ट? पाकिस्तान। वेरी गुड, ठीक है। अप्रोप्रिएट आंसर
Anushka is giving also the right answer, but I am asking the appropriate answer. Okay. फर्स्टली हम लोग जो है यहाँ पे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं. हम लोग डिफरेंट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल भी आप लोग चैट बॉक्स में हमको बताए हो. लेकिन अब हमको थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवीजन के दौरान इस चैप्टर को हम फिर से करेंगे. सूर्यकांत, स्टार्ट योर वीडियो. आप वीडियो ऑफ करके नहीं बैठेंगे, कोई भी आप वीडियो ऑफ करके नहीं बैठेंगे क्लास में. ओके. सो सौरभ, कुछ बोलना है? हाँ, अनम्यूट करो सौरभ. नो मैम. तो फिर रेज हैंड किया. नो मैम. ओके. हिमांशु गौरव, अनम्यूट योरसेल्फ. हिमांशु. Yes, ma'am. Himanshu, read the first paragraph of chapter number 11. Start your video. Chapter number 11, that is modern means of transport. Transport in modern time. Read the first paragraph. क्या हो गया हिमांशु? नहीं पढ़ेगा? सनी कुमार. Sunny, unmute yourself. Yes, ma'am. Sunny, read Yes, the first paragraph. And page number? Page number 98. Transport plays an important role in our day-to-day life. The means of transport help in the movement of raw materials to factories and finished goods to the markets. A well-developed transport system helps in distribution of goods and service to the local, national, and international markets. It's also us to meet It also people helps different us. parts of the world. सनी, learn ट्रेन छूट about रही है क्या? to the area. कौन सी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हारी छूट रही है? हाँ, देयर इज अ फुल स्टॉप इन एवरी सेंटेंस. एवरी सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप है, तो यू हैव टू गिव सम पॉज ना, then will be continue. Transport plays an important role in our day-to-day life. The means of transport help in the movement of raw material to the factories and finished goods to the market. कितना अच्छा लग रहा है सुनने में भी कि हाँ पॉज देकर के पढ़ रहे हैं जहाँ पे फुल स्टॉप है. और तुम कैसे पढ़ रहा था? ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज एंड फिनिश्ड गुड टू द मार्केट. वेल डेवलप्ड. लग रहा है कहीं पे पता चल रहा है कि कहीं पे फुल स्टॉप है? नहीं ना? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे. चलो, हिमांशु तो म्यूट नहीं, अनम्यूट भी नहीं किया और ना ही पढ़ा. हम ही पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों से पढ़वाएंगे. अच्छा चलो, श्रुति कुमारी 5E, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. श्रुति, read the first paragraph. Yes, ma'am. पढ़ो. Transport plays an important role in our day-to-day life. The means of transport help in movement of raw materials to factories and finished goods to the markets. A well-developed transport system helps in the distribution of goods and service to the local, national, and international markets.
It also helps us to meet people from different parts of the world. We learn about their thoughts, ideas, languages, customs, traditions, etc. हाँ, Do एक you मिनट know श्रुति, एक transport मिनट, system? एक मिनट। पढ़ने का मन नहीं है सृष्टि? है या नहीं है? अच्छा लगता है सृष्टि पढ़ना या नहीं? मैम, है मैम, तो फिर इतना क्यों धीरे धीरे पढ़ रहा है? तो फिर इतना कोई ना चेहरे पे ना स्माइल है ना कुछ है, एकदम इतना लेजी जैसे क्यों पढ़ रहे हैं? श्रुति, बी एक्टिव, स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए। इंटरेस्ट दिखाएंगे तब ना मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बोरिंग लग रहा है, नहीं पढ़ना है एसएसटी? पढ़ना है मैम। हाँ तो पढ़ना है तो कल से एकदम अच्छे से रेडी होकर के बैठेंगे और हमेशा चेहरे पे स्माइल रहेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इतना लेजीनेस डीएक्टिव जैसे नहीं, एकदम एक्टिव होकर के पढ़ेंगे। 100% बैटरी चार्ज होनी चाहिए, वो डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। ओके, बीच बीच में कुछ खाते पीते रहो लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलो ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन द मॉडर्न टाइम्स जो है श्रुति ने पढ़ा है फर्स्ट पैराग्राफ, उसी को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो हो गया हमारे लाइफ को एकदम इजी एंड कंफर्टेबल बना दिया है। उमंग, कल चांस मिलेगा सबको को पढ़ने का, देयर इज ओनली फ्यू मिनट लेफ्ट, तो हमको थोड़ा सा समझाने दो, फिर हम लोग जो है आज नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास, लेकिन कल से फिर से करेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या है? हमारे डे टू डे लाइफ को और इजी और कंफर्टेबल बनाते जा रहा है। हम लोग आराम से घर बैठे बैठे बुक करते हैं और तुरंत घर पे बैठे और घर पे ही आकर उतर गए। ये है आपका मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसकी फैसिलिटी आपको मिल रही है। इससे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। रॉ मटेरियल यानी खेतों से अनाज जो है वो रॉ मटेरियल हो गया। हम लोग खेत में जो है चावल को पूरा जमा करके रखे हैं, उसको ले जाने के लिए हम लोग को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां से आराम से हम लोग अपना चावल को जो है ट्रक में लोड किए और उसको लोड करके मार्केट में जा करके बेच दिए। ये फैसिलिटी मिल रही है किसकी वजह से? तो ट्रांसपोर्ट की वजह से। The means of transport help in the movement of the raw materials to the factories and the finished good to the market. आराम से चावल को हम लोग ले गए मार्केट, मार्केट में चावल को जो है फैक्ट्रीज में सप्लाई कर दिया गया। फैक्ट्रीज जो है चावल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए, डिफरेंट ईटिंग प्रोडक्ट्स बना लिए और उसको फिर दूसरे सुपरमार्केट में जाकर के बेच दिए। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, रॉ मटेरियल टू मार्केट, मार्केट टू फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर्स हाउस, ठीक है, हमारे घर पे वो आ जा रहा है वो प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है? विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग जो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो चुन रहे हैं, जो हमारे लाइफ को और इजी एंड कंफर्टेबल बनाते जा रहा है, उसकी वजह से हम लोग ये सारी फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हैं। A well-developed transport system help in the distribution of goods and services to the local, national and international market. हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी वेराइटीज के लैंडफॉर्म्स हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर किए जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत वेराइटी, हमारे देश में बहुत अच्छी किस्म के क्वालिटीज के टी यानी चाय उगाए जाते हैं। यहाँ चाय जो है चाय उगाया जाते हैं और यहाँ का मोस्टली प्रोडक्शन जो है चाय जो है इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है, हम लोग जो है इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम लोग जो है दूसरे कंट्रीज में सप्लाई कर रहे होते हैं और दूसरे देशों में भेज रहे हैं ये प्रोडक्ट्स को। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। It also helps us to meet people from different parts of the world. We learn about their thoughts, ideas, languages, custom and tradition and etc. अभी मेरा जो है वेकेशंस में विंटर ब्रेक में जो है मुझे घूमने का मन था कि मैं गुजरात जाऊं और गुजराती का फेमस डिश, वहाँ के लैंग्वेज को सीखे, वहाँ के कस्टम, वहाँ के ट्रेडिशन को देखे।
तो ये कैसे हुआ, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन चले गए गुजरात और वहां जाकर के उनके इन्वायरमेंट को देखे, वहां के कल्चर को देखे और वहां से सीख करके यहाँ आए और हम अपने फ्रेंड से, अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे हैं कि वहां जाने के बाद ये सारी चीजें हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे आपस के जो बाउंड्री, जो मतलब हम लोग का लिमिटेशन है, जो हम लोग एक कंट्री में एक साथ रह रहे हैं और डिफरेंट वेराइटीज के कल्चर एंड ट्रेडिशन को देखते हैं, वो महसूस कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस आपस के लोगों के साथ बांट रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना, तो ट्रेन क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जिसमें सारे फैसिलिटीज हमको मिल रही है, उसमें टॉयलेट है, कंप्यूटराइज टिकट होती है, स्लीपर्स होते हैं, इनफैक्ट एसी के डब्बे होते हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ रहता है, गर्मियों में अगर ट्रैवल करना होता है तो उसमें एसी लगा हुआ होता है, पूरे लाइफ मतलब पूरा कंफर्टेबल आपकी लाइफ को बना दिया है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग को सोचना नहीं है कि हम लोग को कहीं जाने के लिए जो है, पहले सोचना होता था कि इतने किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ेगा, फिर वहां से हम लोग को पैदल आना पड़ेगा। अब हमारे पास डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है, डू यू नो में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, कोई भी कंट्री का, कोई भी देश के विकास को इंडिकेट करता है, वो कितना विकास कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है। अगर वहां पे डिफरेंट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे तब आप समझ जाइएगा कि वो कंट्री जो है एक डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। That's why the means of transport are known as the lifeline of a country's economy. हमारे आर्थिक, यानी अगर कोई भी कंट्री की आर्थिक लाइफलाइन हो सकते, जीवन रेखा, जीवन लाइन जो है, जीवन रेखा जो है वो क्या है, तो हमारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हम लोग यही आज के लिए रहने देंगे। We concluded. In next class, we discuss the different means of transport. So firstly, you have to read the chapter number 11 slowly, line by line एकदम पढ़ोगे, and objectives and questions को अच्छे से पढ़ करके आओगे। Okay, homework है, read chapter number 11 and do you knows, and you have to learn all the do you knows and objective questions of chapter number 11. Okay, any doubts, any inquiries, then free to ask, raise your hand and ask. No one? Okay, so I repeated my homework. Read chapter number 11, all the do you knows and objectives. Okay, learn all the do you knows and objectives of chapter number 11.